ان کے ایسے ٹکڑے ہم نے کیے ہوتے، یہ پہچان نہ ہوتی کہ یہ کتوں کے گوشت کے ٹکڑے ہیں یا انسانوں کے گوشت کے ٹکڑے ہیں۔ کیا چاہیے؟ تو میں اس بات پر مبارکباد پیش کرتا ہوں امت مسلمہ کو، اپنے علماء کو، اپنے ذمہ داروں کو، جنہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ ہم اس چیز کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں۔ انہوں نے سب نے رجوع حکومت کی طرف کیا ہے، حکومت وقت کی طرف کیا ہے، ایڈمنسٹریشن کی طرف کیا ہے، لیکن اب ہمارا مطالبہ ایڈمنسٹریشن سے جو ہے وہ مطالبہ بھی پورا ہونا چاہیے۔ وہ مطالبہ ایف آئی آر کا نہیں ہے، وہ مطالبہ پی ایس اے کا نہیں ہے۔ ایف آئی آر تو ہمیں روز بروز لگتی رہتی ہے، ایف آئی آر 2 دن لگے گی، تیسرے دن بندہ باہر ہوگا۔ اس گستاخی کی جو سزا ہے، وہ سزا جتنی بڑی گستاخی ہے اتنی بڑی ان کتوں کو سزا ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے۔ اور جس طرح گستاخی سر عام ہوئی ہے اس وقت، جس کے موبائل کے اندر جتنے بھی اکاؤنٹس ہیں، جتنا بھی سوشل میڈیا کے جتنے بھی جز ہیں، واٹس ایپ ہو، فیس بک ہو، انسٹاگرام ہو، کوئی بھی ہو، ہر جگہ پر اس کتے کی ویڈیو جو ہے دہرائی جا رہی ہے۔ جس طرح یہ ویڈیو منظر عام پر ہے، اس طرح سزا بھی منظر عام پر ہونی چاہیے۔ جیلوں کے دلوں میں سزا، پولیس اسٹیشن کے قید خانے میں سزا وہ منظور نہیں ہے۔ جتنی بڑی گستاخی سر عام ہوئی ہے اتنی بڑی سزا سر عام ہونی چاہیے۔ یہ ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے۔ یہ تو میں نے رات ہی سنا تھا، ان کو قید کر لیا گیا، اور قید بھی 2 وجوہات کے ساتھ۔ ہم تو بدزنی نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو استحصال مسلمانوں کے ساتھ آج تک ہوا ہے وہ استحصال گواہ ہے کہ مہینے کے اندر ان کو بچانے کی غرض سے پچھلے مہینے نہیں، اس سے 2-3 پہلے رامبن کا ایک شخص تھا، اس کو لیا گیا، اس کے بعد بس ایف آئی آر کے وقت میں نہیں جی لیا پکڑا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہے سزا دی کہ نہیں دی۔ اس طریقے سے اگر اس معاملے میں کیا گیا تو آگے چل کر اگر اس طرح کا قدم اٹھایا گیا، میں وارننگ دیتا ہوں، استدعا نہیں کرتا ہوں، ہاتھ نہیں جوڑتا ہوں، گزارش نہیں کرتا ہوں، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہماری سانسیں ان کے نام پر چلتی ہیں، ہماری رگوں کے اندر ہم محمد کے غلام، ہم محمد کے غلام، اللہ اکبر۔ ہماری رگوں کے اندر خون کے جو قطرے دوڑتے ہیں وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے دوڑتے ہیں۔ ہم خاموش نہیں رہیں گے۔ یہ احتجاج، اس کا اختتام اس پر اگر ہوگا مگر صرف حکومت کی امیدوں پر کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا فیصلہ کریں گے، وہ ہمارے ساتھ وہ کریں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھا آج تک کسی نے، الحمدللہ ہم اسلام سے وابستہ ہیں، اور اسلام جیسا دعوے کے ساتھ میں کہتا ہوں، اسلام جیسا امن کا مذہب دنیا کے اندر اس دور میں کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی میرا چیلنج ہے، کوئی سامنے پیش کرے، اپنے مذہب کو پیش کرے۔ اسلام امن والا مذہب ہے۔ جس محمد عربی کو تم درندے اور دھلے زبان کھولتے ہو اور بھڑوا گیری کرتے ہو، اسی کے امتی جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے سبق پر اس وقت چل رہے ہیں اور تم چھوڑے ہوئے ہو۔ نہیں تو اگر ویسا نہ ہوتا، انسانیت کا درس اسلام نے نہ دیا ہوتا، تمہاری بوٹیاں اس وقت کتے کھاتے ہوئے ہو۔ ہمارے ملک میں، ہمارے ڈسٹرکوں اور تحصیلوں میں، ہماری تہذیب کے آس پاس رامائن
पढ़ने वाले जो हैं हमारे साथी, गीता को पढ़ने वाले हमारे भाई हैं। सुबह शाम हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। वेदों को पढ़ने वाले हमारे साथ हमारे घरों में आते हैं, हमारे साथ खाते हैं, हम उनके घरों में जाते हैं, उनके साथ खाते हैं। ये वो भाईचारा है। यहां दिवाली भी मनाई जाती है तो ईद भी मनाई जाती है, यहां होली भी मनाई जाती है और उसके साथ साथ मीलाद भी मनाई जाती है। लेकिन इसके पीछे ये आसान मसला नहीं है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि उसके अकेले की हिम्मत ये नहीं थी, ये सोची समझी साजिश है। और इसके पीछे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी तंजीम है, इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है फना होकर रहेगी, तबाह और बर्बाद होकर रहेगी। क्योंकि आज तक देखा गया है जिसने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ज़बान दराजी की, उसकी मौत कुत्ते की तरह हुई है। वो नालियों में पड़कर, मुंह जो है नालियों में पड़कर कैंसर की वजह से मरे हैं। कुत्ते की मौत मरे हैं, जानवरों की मौत मरे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम माशरे की मिसाल जो है आज तक बाकी है। मैंने आज तक कभी नहीं देखा सोशल मीडिया पर कि किसी मुसलमान जवान ने गीता को निशाना बनाया, किसी मुसलमान ने रामायण को निशाना बनाया हो, किसी मुसलमान ने वेद को निशाना बनाया हो, किसी मुसलमान ने किसी मंदिर को निशाना बनाया हो, किसी मुसलमान ने हमारे सिख, हिंदू या बौद्ध या लिंगाई जितने भी मजहब इस देश में रहते हैं कि किसी की किताब को, किसी के अवतार को निशाना बनाया। लेकिन दिन ब दिन मुसलमान को निशाना बनाया, कभी अहले बैत को निशाना, कभी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निशाना, कभी सहाबा को निशाना। अब पानी जो है सर से ऊंचा होता जा रहा है। और अगर यही चाल जो तुम दिल्ली में खेलते हो, बिहार में खेलते हो, गुजरात में खेलते हो, ये तुमने जम्मू कश्मीर में शुरू कर दी, ये इब्तिदा थी। अगर इस इब्तिदा की यहीं पर इंतहा न हुई, आज के बाद ऐसा कुत्ता और भड़वा कोई फिर से निकला, उसकी जबान हम अपने हाथों से खींचेंगे, उसका फैसला हमारे हाथ करेंगे, चाहे हमें जिस तरह करना पड़े। हम उस मोहम्मद के दीवाने हैं, हम उस मोहम्मद के गुलाम हैं कि जिस पर हम जान निछावर करना भी जानते हैं और उनकी बेइज्जती की खातिर, उनकी शान में बेअदबी की खातिर किसी की जान लेना भी जानते हैं। बेशक ये अलग बात है कि हम इस वक्त हुकूमत को देख रहे हैं। हमारी उम्मीद इस वक्त हुकूमत के साथ जुड़ी हुई है, चाहे उस हुकूमत में हमारे गवर्नर साहब हैं या और बाकी महकमे हैं। हम उनसे गुजारिश करते हैं, जितनी बड़ी गलती है उतनी बड़ी सजा जरूर उस शख्स को, उस दरिंदे को मिलनी चाहिए। और अगर नहीं मिली, फिर अगर फिरकावारियत हुई, जिम्मेदार हुकूमत हुई, जिम्मेदार वो लोग होंगे जो उनको बचाने, क्योंकि कभी कभी इनको पीठ पीछे बचाया भी जाता है। ये ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, ये अकेले नहीं हैं, ये किसी तंजीम से वाबस्ता है। वो तंजीम भी सुन ले कि ये भगवादारी जम्मू कश्मीर नहीं है। जम्मू कश्मीर वाले भगवा राज को कबूल नहीं करते। ये तुम्हारे उस जगह चलता होगा जहां तुम्हारी राय है, यहां नहीं चलेगा। और इस मामले में हम मां की गाली बर्दाश्त करेंगे, बाप की गाली बर्दाश्त करेंगे, हमें गाली दो हम बर्दाश्त कर लेंगे, सह लेंगे। हमारे सरपंच साहब को दो, इमाम को दो, मुक्तदी को दो, हम सह लेंगे, पत्थर सीने पे बांध कर सह लेंगे। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस पर जो उंगली उठेगी वो उंगली टूट जाएगी, जो जबान उठेगी वो जबान खींच ली जाएगी, जो कदम उठेंगे उन पर हम तलवारें चलाएंगे। और जो शख्स ऐसा मामला दोबारा करेगा, उस शख्स को हम खुद पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। अगर हुकूमत इस मामले में हमारा साथ न दे, अगर दौरे हाजिर की ऑर्गेनाइजेशन जो है या तंजीमें जो है इस मामले में हमारा साथ न दे, तो मैं सब भाइयों का जिन्होंने सुबह से इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया और हमने अमन एहतजाज किया, जिसकी हमें खुली छूट है कानून के एतबार से,
हम हट धर्म लोग नहीं हैं। हमारे एक हाथ में अगर कुरान है तो दूसरे हाथ में हमें डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ कानून भी, उसका भी हम सहारा लेते हैं। लेकिन हमारे लिए मजहब पहले है, कानून दूसरे नंबर पर है। हमारे लिए कुरान पहले है, डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ कानून दूसरे नंबर पर है। हमारे लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका पहले नंबर पर है, डॉक्टर अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान दूसरे नंबर पर है। हम उसको भी सलाम करते हैं, हम उसको भी मानते हैं, लेकिन आज उसकी भी इस मुल्क में धज्जियां उड़ाई गई। जिन्होंने उस संविधान को नहीं देखा, जिन्होंने उसके खिलाफ किया, उनसे उम्मीद लगाना भी बेवकूफी है। मगर फिर भी हम अपने आप को जो है आश्वासन देते हैं कि शायद हुकूमत कर ले, शायद जम्मू कश्मीर की जो गवर्नमेंट है शायद इसका स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और अगर एक्शन न लिया गया तो फिर आज अगर हम प्रोटेस्ट में हैं, दोबारा आने वाला जो हमारा कदम होगा वो प्रोटेस्ट नहीं होगा। उसमें जो हालात बिगड़ेंगे जिम्मेदार तुम लोग होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं तहे दिल से पूरे जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का, उलमा का, जिम्मेदारों का, तंजीमों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने एहतजाज तो किया। एहतजाज हमारा हक था, क्योंकि तुमने तलवार हमारे सीने पर मारी है, तुमने छुरा हमारे सीने पर मार दिया है, जो तुमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर ज़बान दराजी की है। प्रोटेस्ट हमने किया, सीने पर पत्थर रख के किया, और इसी पर हमने महदूद रखा, सिर्फ इस भरोसे पर कि हमारे साथ वक्त की हुकूमत है। हमें जो है IGP साहब ने जम्मू से और हमारे जो SHO हजरात हैं, इन्होंने हमें उम्मीद दिलाई कि हम आपका जो मुतालबा है इसको पूरा करेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ हमने पीसफुल एहतजाज किया, अमन पसंद एहतजाज किया, अमन वाला एहतजाज किया। तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ और सबको आखिर में ये अर्ज करता हूँ, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। जबान से तो हम गुलाम मोहम्मद कहते हैं, लेकिन जवानों वक्त आ चुका है कि किरदार के साथ गाजी बन के निकलो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी गुलाम बनकर निकलो। फिर इन गधों को जुर्रत कहाँ से आएगी? जबान खोलने से पहले 100 बार सोचेंगे कि हम खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे। इसलिए नौजवानों से भी, बुजुर्गों से भी गुजारिश है, जो आइडियल, जो हमारा नमूना हजरत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन का लेकर आए हैं, जरूरत हमें भी है कि उस दीन पर कमा हक चलने की कोशिश करें। वाखिर दावाना।